Hello students, Jyoti Diwan is once again here with a new story for you. Going Places is lesson 8 from Flamingo. This is a beautiful story of a teenage girl, Sophie. First of all, I introduce you to the author A.R. Barton. A.R. Barton was a modern English writer. He has authored many stories like Going Places, which are mainly concerned with the problems that the stage of adolescence. Going Places is a story that discusses teenagers and their dreams. Far from the real world, the teenage period is all about the desires to reach the sky. This period is all about desires and achieving the impossible. The story revolves around fantasies and daydreams. In addition, teens usually have a hero they look up to or adore in this age. Barton emphasizes that fantasy and imagination end up in being illusions and empty mirages. Before going to the summary, we shall read the theme of the story. The theme of this story is adolescent fantasizing and hero worship. It's quite natural for teenagers to have unrealistic dreams, especially when their families are not well off. टीनेजर्स जब अपने जीवन में धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, वैसे ही वो अपने सुंदर फ्यूचर के ड्रीम्स भी देखने लग जाते हैं, जो कि एक नेचुरल बात है। सेलिब्रिटीज़ में से किसी के इतने ज़्यादा फ़ैन हो जाते हैं कि लेखक के अनुसार अपने हीरो की पूजा तक करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं उनसे, खासकर वो बच्चे जिनकी फैमिलीज़ रिच नहीं होती। It's because of the fact that the socio-economic background plays a leading role in the lives of the youths for choosing a particular profession. The act of fantasizing may lead to miseries in case it's beyond our approach. It's useless to build castles in the air. इसलिए यूथ को अपना कैरियर, अपना पर्टिकुलर प्रोफेशन चुनने के लिए उसकी फैमिली की अर्थव्यवस्था का बड़ा रोल रहता है। बड़ा बनना, बड़े ड्रीम्स देखना कभी यूथ के दुख का कारण भी बन जाता है। उनको सोचना चाहिए कि हवा में महल बनाना बेकार है। मेहनत करके, पढ़ाई करके और अपने बलबूते पे अपने सपने पूरे किए जा सकते हैं। And now we will read the summary in detail. The chapter tells the pitiable story of a young schoolgirl named Sophie. She comes from a very poor family, and though she is yet in school, she has high dreams and aspirations of her life. She makes numerous plans for her future, and all of them happen to be far-fetched, whereas in reality she has no money to invest in her wishes. ये लेसन सोफ़ी नाम की एक यंग टीनेजर स्कूल गोइंग लड़की की पीटीएबल दयनीय कहानी है। वह तो गरीब घर की, पर उसके सपने ऊंचे हैं। वो एम्बिशियस है, अपनी फ्यूचर प्लान्स बनाती है, बट अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं हैं। सोफ़ी इज़ रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विद हर फ्रेंड जैंसी. They are about to pass out from school. Only a few days are left. Hence, their talks went towards their future plans. Sophie begins with her unrealistic aspirations. She says she will open a boutique after school. When Jancy says it needs a lot of money, she says she would manage to collect money, and Jancy says that to save money for a boutique will be a long affair. सोफ़ी अपनी सहेली जैंसी के साथ स्कूल से घर लौट रही होती है। स्कूल से पास आउट होने में कुछ ही टाइम बचा है, यानी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होने वाली है। इसीलिए वो रास्ते में अपने फ्यूचर प्लान्स पर बातचीत कर रही हैं। सोफ़ी रियलिटी की बात नहीं करती, रियलिटी से हट के वो अपने डिज़ायर्स की बात करती है। वो कहती है कि वो बुटीक खोलेगी और उसके लिए पैसा भी इकट्ठा कर लेगी। जैंसी कहती है कि बहुत टाइम लगेगा पैसा इकट्ठा करने के लिए। Then Sophie says in the beginning she would be a manager at some office.
Jancy says that no one would keep her as a manager straight off. Sophie promptly says that she would prove her natural talent from the beginning, which would enable her to be a manager at once. Next is her dream to have a very nice shop in the city when she would have saved enough money. She would take the most beautiful and costly shop in the entire locality. Jancy tries to tell Sophie that those dreams would not materialize and never come true. तब सोफ़ी कहती है कि शुरू में वो किसी ऑफिस में मैनेजर भी हो सकती है। जैंसी कहती है कि बिगिनिंग में कोई उसको सीधे मैनेजर तो लगाएगा नहीं। तब सोफ़ी कहती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस और टैलेंट से साबित कर देगी कि उसे तुरंत मैनेजर बनाया जा सके। अगला उसका ड्रीम सिटी में सबसे अच्छी दुकान होने का है। जैंसी सोफ़ी को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जो सपने वो देख रही है कभी भी पूरे नहीं होंगे और कभी सच भी नहीं होंगे। सोफ़ी goes on, though next she talks about becoming an actress and earn a lot of money and run her amazing shop side by side because actresses don't have to work full time. Again, she knows nothing about fashion, but she says she would become a fashion designer. सोफ़ी अपने ड्रीम्स प्लान बनाती जाती है। अब वो एक्ट्रेस बनने की बात करती है। उसका कहना है कि एक्ट्रेस बन के भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है और एक्ट्रेसेस को तो पूरे समय तक काम भी नहीं करना पड़ता। सोफ़ी फैशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानती पर फिर भी फैशन डिज़ाइनर बनने की बात करती है। जैंसी इज़ नॉट लाइक सोफ़ी। शी लीड्स अ रियलिस्टिक लाइफ. She knows that in her present life she can't think about far-fetched things. She has learned to be satisfied with her fate in the biscuit factory. जैंसी सोफ़ी की तरह नहीं है। वह एक वास्तविक जीवन यानी रियल लाइफ जीती है। वह जानती है कि उसको सिर्फ प्रेजेंट के बारे में ही सोचना है। वह दूर की बातों के बारे में नहीं सोचती। उसने बिस्किट के कारखाने में ही अपनी किस्मत से संतुष्ट होना सीख लिया है। She tries to warn Sophie that she should not be occupied with false dreams, but Sophie hardly pays attention to her. Sophie reaches home and finds that her father has returned from the day's work and is eating some pie. He has heard Sophie talking about earning money and buying a boutique. So he is seen in sweat. He looks serious with his plump face. Derek says he thinks money grows on trees. जैंसी सोफ़ी को वार्न करती है कि झूठे सपनों में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन सोफ़ी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। सोफ़ी घर पहुंचती है और देखती है कि उसके फादर दिन का काम करके घर लौट आए हैं और कचौरी खा रहे हैं। उन्होंने सोफ़ी को पैसा कमाने और बुटीक खरीदने की बात करते सुन लिया होता है। वो पसीने से तर भी दिख रहे हैं और अपने गोल मटोल चेहरे से सीरियस भी दिख रहे हैं। डेरेक कहता है कि उसे लगता है पैसे जैसे पेड़ों पे उगते हैं। डेरेक इज़ सोफ़ीज़ लिटिल ब्रदर. Sophie's elder brother is Jeff, with whom she shares all secrets. She feels that he would never let her down and would help her in her dreams. But Jeff thinks she is too young to go out in the town and see the outside world. Their father too doesn't allow her to go out. He is not a very easy person. One day, Sophie shares with her elder brother a secret while she is sitting in his room. She says she had a chance meeting with a young football player, Danny Casey. He is an Irishman and a famous player. डेरेक सोफ़ी का छोटा भाई है। सोफ़ी का बड़ा भाई जोफ है, जिसके साथ वो अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करती है। सोफ़ी को लगता है कि उसका भाई उसे कभी निराश नहीं करेगा और उसके सारे सपने पूरे करने में उसकी हेल्प भी करेगा।
लेकिन जोफ को लगता है कि सोफ़ी शहर के बाहर की दुनिया देखने के लिए अभी बहुत छोटी है। उसके पिता भी उसे बाहर भेजने के लिए राज़ी नहीं होते। एक दिन वह अपने भाई के कमरे में बैठी होती है और कहती है कि उसको एक आयरलैंड के फेमस प्लेयर डैनी कैसी से मिलने का मौका मिला था। She tells Jove that while she was standing in front of the window of a shop, someone came and stood near her. She looked around and was amazed to see that it was the famous football player Danny Casey. She then describes the player's looks. He has green, gentle eyes, but that time their father comes in. He looks clean and tidy now. He switches on the television and sits down on a chair to watch in comfort. Jove then tells his father about Sophie's meeting with Casey. सोफ़ी जोफ को बताती है कि जब वह एक दुकान की खिड़की के सामने खड़ी थी तो कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो उसको देखकर हैरान हो गई क्योंकि वो फेमस फुटबॉल प्लेयर डैनी केसी था। वो उस प्लेयर की लुक्स का डिस्क्रिप्शन भी देती है कि उसकी हरी कोमल आंखें हैं। बट मीनवाइल सोफ़ी के फादर आ जाते हैं और आराम से चेयर पर बैठकर टीवी देखने लग जाते हैं। जोफ उनको डैनी केसी के साथ सोफ़ी की मुलाकात के बारे में बता देता है। द फादर टर्न बैक इन एंगर। सोफ़ी हैड अ स्ट्रॉन्ग फियर फॉर हर फादर, सो शी ट्रेम्बल्ड टू सी हर फादर्स फेस। द फादर सेज दैट डैनी वॉज नॉट सो गुड एज अ प्लेयर. टॉम फिने वॉज द बेस्ट. जोफ सेज दैट समडे Casey might also be successful. Sophie praises Casey, saying he was the best. The father defies the arguments of the children when Sophie says that Casey would buy a shop for her. The father asks her who said her so. She says that he has promised her when they met in the market. The father says aggressively, "This another of your wild stories? One of these days you are going to talk yourself into a load of trouble." सोफ़ी अपने फादर से डरती थी, इसलिए उनका गुस्से वाला चेहरा देखकर कांप उठी। उसके फादर ने कहा कि डैनी उतना अच्छा प्लेयर नहीं था। टॉम फिने सबसे अच्छे प्लेयर थे। जोफ कहता है कि एक दिन डैनी भी सक्सेसफुल प्लेयर बन सकता है। बट सोफ़ी तो प्रेज़ करती जाती है डैनी की। सोफ़ी अपने फादर को ये भी बताती है कि डैनी जब उसको मार्केट में मिले थे तो उन्होंने सोफ़ी के लिए एक शॉप खरीदने का प्रॉमिस भी किया था। फादर उसको गुस्से में कहते हैं कि ये फिर से उसकी यानी सोफ़ी की कोई मनगढ़ंत खुद से बनाई कहानी है। वो किसी दिन कभी खुद को किसी परेशानी में डाल देगी। सोफ़ी देन ट्राइज टू टेक अ प्रॉमिस फ्रॉम जोफ दैट ही विल नॉट डिस्क्लोज हर फर्दर सीक्रेट्स टू एनीवन, especially their father who opposes her. Jove has been 3 years out of school and now works as an apprentice mechanic. He is a quiet bay and talks very little. He promises her to say that he has none to share anything with. Sophie goes on to say that she has had very intimate talks with Danny and he has a fancy for her. He has also promised to meet her in loneliness. Jove doesn't believe her and gets a little irritated to hear such useless talks. He says, "It's the unlikeliest thing I ever heard." सोफ़ी अपने भाई जोफ से प्रॉमिस लेती है कि वो उसके सीक्रेट्स कभी किसी को नहीं बताएगा, खासकर उनके फादर को। जोफ को स्कूल छोड़े 3 इयर्स हो गए हैं और अब वो एक मैकेनिक की ट्रेनिंग ले रहा है। वो बहुत ही शांत और कम बोलने वाली नेचर का है। सोफ़ी जोफ को बताती है कि डैनी ने उससे अकेले में मिलने का प्रॉमिस भी किया है। जोफ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। सोफ़ी की बेकार की बातों से थोड़ा चिढ़ भी जाता है। वो कहता है कि अब तक की ये सबसे अनसुनी अनबिलीवेबल बात है जो उसने कभी भी नहीं सुनी थी इससे पहले। All the members of Sophie's family were football fans. Her father particularly was a great fan of Danny Casey. Jove and little Derek too liked him. Sophie was mad after him and he was her personal hero. On Saturday,
They made their weekly pilgrimage to watch Danny Casey in person. Casey played for United. United won by 2-0. And Casey scored the second goal. Sophie's father cried in joy. Sophie glowed in pride. Sophie's stories about the so-called meeting with Danny Casey go about and spread fast in the locality. One day, Jancy asks Sophie about her talks about Danny. Sophie gets angry to know that her brother has disclosed her secret, but Jancy says she will not spread it to anyone else. सोफ़ी के सभी फैमिली मेम्बर्स फुटबॉल के शौकीन थे। एक्चुअली उसके फादर भी डैनी के बहुत बड़े फ़ैन थे। जोफ और डेरिक भी उसे पसंद करते थे। सोफ़ी तो ऑलमोस्ट मैड थी उसके लिए। पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा, यानी सैटरडे को वो स्पेशली डैनी का मैच देखने गए, डैनी को सामने से देखने के लिए। ये उनके लिए तीर्थ यात्रा जैसा ही था। डैनी यूनाइटेड के लिए खेल रहे थे। यूनाइटेड ने 2-0 से 2-0 से मैच जीता। डैनी केसी ने दूसरा गोल किया तो सोफ़ी के पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सोफ़ी को प्राउड फील हुआ। डैनी और सोफ़ी के मिलने की बातें अब तो सब कहीं फैल गई थीं। एक दिन सोफ़ी की फ्रेंड जैंसी ने उससे पूछा तो सोफ़ी को गुस्सा आ गया कि उसके भाई जोफ ने उसका सीक्रेट आउट कर दिया है। लेकिन जैंसी कहती है कि वो अब यह बात किसी और को नहीं बताएगी, किसी और के सामने नहीं फैलाएगी। In her imagination, Sophie forgets about her reality and starts mixing her reality with her fanciful thoughts. She starts to think that Danny will actually come to meet her. She goes alone to a lonely spot and sits on a bench near a canal. She keeps waiting for him, though in her heart she knows that he will not come. But she enjoys to deceive herself. अपनी इमेजिनेशन में, कल्पना में, सोफ़ी अपनी रियलिटी को भूल जाती है और अपनी रियलिटी और इमेजिनरी थॉट्स को मिक्स करना शुरू कर देती है। उसको सच में लगने लगता है कि डैनी उससे मिलने आएगा। वह अकेली एक सुनसान जगह पर जाती है और एक नहर के पास एक बेंच पर बैठ जाती है। वह डैनी का वेट करती है, हालांकि वह दिल से जानती है कि वह नहीं आएगा, बट फिर भी उसे खुद को धोखा देने में मज़ा आता है। फाइनली शी गेट्स सैड एंड लीव्स द प्लेस विद अ हैवी माइंड। Besides, she is afraid to think that she will become a laughing stock in her locality. This is the first and ultimate suffering Sophie faces as a result of her unrealistic and false dreams. It is better if she learns from this and gets out deceptions to a realizable and true word. अंत में वह उदास हो जाती है और भारी मन से वहाँ से चल देती है। वह ये सोचकर डरती भी है कि अपने इलाके में अब वो हंसी का पात्र बन जाएगी, सब उस पर हंसेंगे। झूठे और रियलिटी से हटकर सपनों का सामना कर लिया था सोफ़ी ने। ये उसका पहला और आखिरी दर्द भरा एहसास था। अब अच्छा यही है कि वह इससे सीखे, सबक ले और अपने आप को दिए इस धोखे को वो रियल लाइफ की तरफ ले जाए, सच्चाई की दुनिया में ले जाए खुद को। Dear students, let us have a look at the character sketch of Sophie. Sophie is a teenage girl from a middle-class family who dreams of being either a manager or an actress or fashion designer. She also wishes to own a boutique, but without earning money or having the necessary qualification. Her father wants her to take up a job at the biscuit factory. Jancy, Sophie's close friend, she is practical and tells Sophie that working hard and earning money can help achieve big dreams. सोफ़ी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाली टीन एज लड़की है। वो या तो कभी मैनेजर, कभी एक्ट्रेस और कभी फैशन डिज़ाइनर बनने के सपने देखती रहती है। वह एक अपनी बुटीक भी चाहती है, लेकिन बिना किसी मेहनत के पैसा कमाकर या बिना किसी नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन के। उसके पिता चाहते हैं कि वो बिस्किट फैक्ट्री में नौकरी करे।
सोफ़ी की फ्रेंड जैंसी प्रैक्टिकली सोचती है, रियलिटी में रहने वाली है। वो सोफ़ी को समझाती रहती है कि मेहनत से और अपनी काबिलियत से पैसा कमाकर बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। सोफ़ीज़ फादर, he is a hard worker and manages to make ends meet. He lives in a small room that is used for cooking and washing clothes. He doesn't like Sophie's habit of daydreaming and is insensitive towards it. Sophie's mother, she used to be a hardworking woman because of financial issues. All the household chores have resulted in her having a bent back. Jove, Sophie's brother, a junior mechanic who is self-involved and doesn't mingle with his family. Sophie wants to know his secrets and wants to meet his friends. Sophie doesn't like his silence and is fascinated by his life. She wants to go on bike rides with him and be a part of his life. सोफ़ी के पिता हार्ड वर्कर हैं और घर की सारी नीड्स पूरी करते हैं। उन्हें सोफ़ी का डे ड्रीमिंग होना पसंद नहीं। वो वरीड भी रहते हैं सोफ़ी के लिए। सोफ़ी की माँ फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण घर का सारा काम खुद ही करती हैं। सोफ़ी का भाई जोफ मैकेनिक का काम सीख रहा है, अपने पैरों पर खुद मेहनत से खड़ा होना चाहता है। वो घर में ज़्यादा किसी से मेल जोल नहीं रखता, कम बोलता है। सोफ़ी अपने भाई से मिलना जुलना चाहती है, उसके मन के सीक्रेट्स जानना चाहती है। उसे अपने भाई की चुप्पी बिल्कुल पसंद नहीं। वो अपने भाई की लाइफ से प्रभावित भी होती है। उसका मन करता है कि अपने भाई की बाइक पर घूमे, अपने भाई के जीवन का हिस्सा बने। वो अपनी बातें जब अपने भाई से शेयर करती है तो उसके भाई को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उल्टे वो चिढ़ भी जाता है। एंड नाउ वी शैल कंक्लूड द स्टोरी। टू सम अप गोइंग प्लेसेस समरी, we learn about the naive fantasies of teenagers and how reality may hit us harder as the world is full of compromises and cost a lot of dreams. Sophie didn't really meet Danny Casey. It was nothing but a creation of her fantasy, as she was so much fascinated by the young Irish footballer. Moreover, she was always lost in a dreamy world where she imagined for something like that to happen in her life. Going places स्टोरी से हम टीनेजर्स की इनोसेंट फीलिंग्स के बारे में जान पाते हैं। टीनेजर्स बहुत स्वीट से मासूम से सपने देखते हैं, पर रियलिटी किस तरह से उनके सपनों को मार डालती है। अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाई करके उन्हें अपनी लाइफ में कितने कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। दुनिया समझौतों से भरी पड़ी है। सोफ़ी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो कभी डैनी कैसी से मिली ही नहीं थी। वो सब उसकी इमेजिनेशन के अलावा कुछ नहीं था। उसको अपने झूठ पर भी यकीन हो गया था। वो अपने झूठ में इतना खो गई कि उसको ये अच्छा लगने लगा और इसे ही सच मान कर चली। उसने खुद के साथ धोखा होने दिया, पर अब वो अपने इस एक्सपीरियंस से सबक लेगी और रियलिटी में जिएगी, मेहनत से अपने सपने पूरे करेगी। मेरी ये प्रेजेंटेशन सुनने वाले, देखने वाले आप सब भी टीनेजर्स हैं। सो लिव इन रियलिटी। गॉड विल सपोर्ट यू टू फुलफिल योर ड्रीम्स बाय वर्किंग हार्ड। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।